السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیسن جو سوشل سائنس سے ریلیٹڈ ہے، اجتماعی سلوک اور احتجاجات۔ عزیز طلباء، یہ لیسن آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان اساتذاؤں کے لیے بھی ہے جو آنے والے امتحانات جیسے کہ پی ایس ٹی ہے، جی پی ٹی ہے، ایچ ایس ٹی ہے، جو بھی ہو جو سوشل سائنس سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے لیے ہر ایگزام میں ایک یا دو کوشچنز اس کے لیے اس کے ریلیٹڈ ہمیشہ سے کیا ہے پوچھا گیا ہے۔ آپ بنا کسی دقت کے جسٹ ایک نظر آپ اس کو دیکھ لیں تو بہتر اور مناسب ہوگا، یہ میری رائے ہے۔ چلیے طلباء، دیکھتے ہیں پہلے کیا ہے، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے جو ہے پر کیجئے۔ تو پہلا دیکھیں، چپکو تحریک چلنے والی ریاست کا نام ہے۔ کئی بار یہ کمپٹیٹیو ایگزامس میں پوچھا گیا ہے۔ تو چپکو تحریک چلنے والی ریاست کا جو نام ہے وہ اتراکھنڈ، جو کہ اتر پردیش میں موجود ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 2، نرمدا بچاؤ تحریک کی قیادت کرنے والے ڈیش ہیں۔ یہ کئی بار ٹی ایگزام میں بھی کیا ہے یہ سوال ریپیٹ ہو چکا ہے۔ نرمدا بچاؤ تحریک کی قیادت کرنے والے میدھا پاٹکر ہیں۔ نیکسٹ نمبر 3، ڈاکٹر شیورام کارنت نے ڈیش کے مقام پر نیوکلیائی پاور جنریشن کے قیام کی مخالف کی۔ کون سے؟ کائیگا۔ نیکسٹ دیکھیں، درج ذیل سوالوں کے ایک جملے میں جواب دیجئے۔ ایک جملے میں جواب دیجئے۔ تو سوال کیا ہے دیکھیں، اجتماعی سلوک سے کیا مراد ہے؟ اجتماعی سلوک، دیکھیں جواب، انسان جب کسی جماعت کا رکن ہوتا ہے وہ اس انداز سے بالکل مختلف ہوتا ہے جس طرح وہ تنہا پاتا ہے۔ اس قسم کے رویے کو اجتماعی سلوک کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن، چپکو تحریک کے قائد کون تھے؟ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے، سندر لال بہوگنا اور شری چندی پرساد بھٹ، یہ جو ہے چپکو تحریک کے قائد ہیں۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 6، دیکھیں کوشچن نمبر 6 کیا ہے، خود امدادی جماعت سے کیا مراد ہے؟ جواب، خواتین نے اعتماد اور تعاون کی بنیاد پر خود امدادی تنظیم بنائی ہیں۔ یہ تنظیمیں خواتین کو معاشی اور سماجی طور پر بااختیار بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ خود کی مدد کرنے والے گروہ انہیں مساوی حقوق کے موقع اور اختیارات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن، مزدور تحریک سے کیا مراد ہے؟ جواب دیکھیں، مزدور تنظیمیں کے ذریعے مزدوروں کے وقار کو برقرار رکھنے اور مزدوروں کے مقامات کے تحفظ کے لیے چلائی جانے والی تحریکیں مزدور تحریکیں کہلاتی ہیں۔ نیکسٹ کوشچن، درج ذیل سوالات کو گروہوں میں بحث کرتے ہوئے 2 یا 3 جملوں میں جواب دیجیے۔ دیکھیں پہلا سوال، کوشچن نمبر 8، اجتماعی سلوک میں کیا شامل ہیں؟ جواب، عوامی بھیڑ، افواہیں، پروپیگنڈا، عوامی خیالات، انقلاب اور سماجی احتجاجات وغیرہ شامل ہیں۔ نیکسٹ کوشچن، کوشچن نمبر 9، دیکھیں کوشچن نمبر 9 کیا ہے، عوامی بھیڑ کیا ہے، مثال دیجیے۔ عوامی بھیڑ کیا ہے، مثال دیجیے۔ جواب، کسی بھی قبل از وقت بغیر سوچے سمجھے یا امید کے برخلاف ارد گرد جمع ہو جانا عوامی بھیڑ کہلاتی ہے۔ مثالیں، سنیما گھر کے سامنے ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا ہجوم، سڑک حادثے کو دیکھنے کے لیے جمع شدہ بھیڑ وغیرہ۔ نیکسٹ کوشچن، عوامی بھیڑ کی نوعیت بیان کیجیے۔ عوامی بھیڑ کی نوعیت کیا ہے، بیان کیجیے۔ دیکھیں سوال بہت آسان طریقے سے کیا یہاں پر پوچھا گیا ہے، تو اس کا جواب دیکھیں، عوامی بھیڑ عارضی ہجوم ہوتا ہے
इसमें अवाम किसी एक मुकर्ररा जगह पर इकट्ठा होते हैं। हुजूम में शामिल अरकान आपसी ख़यालात, जज्बात और अमल के असर से बहुत जल्द मुतासर होते हैं और इसके ज़रिए दिल के अंदर छुपे जज्बात का इजहार होता है। बाज़ औक़ात ऐसे मुज़ाहिरे पर तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखें सवाल नंबर 11 क्या है? माहौलियाती आलूदगी के मानी और नवैयत बयान कीजिए। जवाब, मानी, हमारे इर्द गिर्द मिट्टी, हवा, पानी और हयातियात जहरीले मादों और कीमियाई असरात से आलूदा होने वाले माहौल को माहौलियाती आलूदगी कहा जाता है। इसी तरह नवैयत देखें, तरक्की याफ्ता कौमें अपनी ज़िंदगी के मकसद के लिए माहौल को तबाह कर रही हैं। इसके अलावा बेकाबू होकर बढ़ने वाले शहरों की तरक्की, सनअती तरक्की, तकनीकी तरक्की, नक्ल व हमल के निज़ाम की तरक्की, जंगलात तबाह और माहौल की कसाफत हो रही है। इस तरह ये एक संगीन मसला बन गया है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? ख़वातीन के खुद इमदादी जमातों की अहमियत को वाज़ह कीजिए। जवाब, ख़वातीन ने खुद एतमाद और ताउन की बुनियाद पर खुद इमदादी तंजीमें बनाई हैं। ये तंजीमें ख़वातीन को मुआशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाती हैं। इसके अलावा खुद की मदद करने वाले ग्रुप इन्हें मसावी हुकूक़ के मौका और इख्तियारात फ़राहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अभी लेकिन 2015 मार्च का क्वेश्चन है, माहौलियाती कसाफत के बद असरात से हम अवाम को क्यों कर आगाह कर सकते हैं? जवाब, कुदरती वसाइल का मौजू इस्तेमाल करके आगाह कर सकते हैं। अवाम में पाक व साफ़ माहौल के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम बनाएं। पौधों को उगाकर कूड़ा करकट से घरों और सड़कों को महफूज रख कर आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2015 में पूछा गया है, चिपको या चिपको तहरीक के अहम मकासद क्या हैं? उसके एम्स क्या हैं, मकासद क्या हैं चिपको तहरीक के? जवाब, दरख्तों की खुफिया फरोशी को रोकना, पौधों और दरख्तों को उगाना, माहौल की अहमियत के ताल्लुक़ से अवाम में बेदारी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, अवामी ग्रुप कैसे अवामी भीड़ में तब्दील होती है? अवामी ग्रुप किस तरह क्या है अवामी भीड़ में तब्दील होती है? जवाब, बेकाबू भीड़ के रद्द अमल फसादात इंतहाई शक्ल इख्तियार करने की सूरत में अवामी ग्रुप भीड़ में तब्दील हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको तहरीक क्यों शुरू की? चिपको तहरीक क्यों शुरू की? जवाब, जंगलात की तबाही की हिफाजत करने के लिए, माहौल की तबाही की हिफाजत करने के लिए चिपको तहरीक शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि जून 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, बेकाबू भीड़ की शक्ल व सूरत बयान कीजिए। जवाब, इत्तेहाद और मकसद की कम से कम सतह ना थी, जायदाद की तबाही और अफरा तफरी पैदा करती है, अमन व क़ानून के लिए ख़तरा है, फ़िरक़ा वाराना फसादात, नस्ली झगड़े और ग्रोही टकराव कस्बों और शहरों में अक्सर व बेशतर हुआ करता है, सिर्फ मुख्तसर मुद्दत के लिए महदूद, लोगों का गैर मुवाजना और मुजरिमाना जो क्या है इसमें अज़्म होता है। नेक्स्ट 2018 मार्च का क्वेश्चन, हिंदुस्तान ने नेल्सन मंडेला की हिमायत की, क्यों? जवाब, हिंदुस्तानी खारजा पॉलिसी नस्ली इम्तियाज़ की मुखालिफ है। नंबर 2, 10 दिसंबर को इंसानी हकूक़ का दिन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने 10 दिसंबर 1948 को इंसानी हकूक़ का ऐलान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का है, चिपको तहरीक के लीडर्स कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा और श्री चंदी प्रसाद भट्ट, ये जो है चिपको तहरीक के लीडर्स थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन क्या है। बेकाबू भीड़ क्यों समाजी सरगर्मी होती है? जवाब, हद दर्जा तबाकुन सूरत हाल पैदा करती है, फ़िरक़ा वाराना फसाद, अवामी बद इत्मीनानी ग्रूही टकराव, गैर तहज़ीबी चाल चलन, मौत भी क्या है इसमें वाक़ा हो जाती है। नेक्स्ट 2019 का क्वेश्चन देखें। मोनावादी की तहरीक कहाँ हुई? इम्पोर्टेंट सवाल है। मोनावादी की तहरीक जो है रियासती केरला के पालघाट में, रियासती केरला के पालघाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवामी भीड़ से क्या मुराद है? जवाब पढ़ चुके हैं। किसी भी क़ब्ल अज़ वक्त बग़ैर सोच के या उम्मीद के बरखिलाफ़ एक मुत्तफ़क़ा ख्वाहिश के इर्द गिर्द घूमने वाली अवामी जमात को अवामी भीड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 सितंबर में पूछा गया है। कायगा में कायम होने वाली न्यूक्लियाई पावर जनरेशन के खिलाफ तहरीक क्यों की गई? जवाब, जोहरी तवानाई से जंगल की तबाही, ताबकारी असरात की वजह से माहौलियाती कसाफत वगैरह। 2021 नर्मदा बचाओ तहरीक किसने की? मेधा पाटकर ने चलाई। नंबर 2, कायगा में कायम होने वाला न्यूक्लियाई पावर के खिलाफ तहरीक करने वाले कौन थे? डॉक्टर शिवराम कारंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का अवामी भीड़ से क्या मुराद है? आप को भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट 2022 का एक अहम क्वेश्चन देखें। शराब मुखालिफ तहरीक औरतों की अहम तहरीक थी। किसकी? शराब मुखालिफ तहरीक औरतों की अहम तहरीक थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम माहौलियाती तहरीकों की फहरिस्त बनाएं। तो उसमें सबसे पहले चिपको तहरीक है, अपीको तहरीक है, नर्मदा तहरीक है, मोनावादी तहरीक है, साहिली इलाक़ों के ख़िलाफ़ क्या है? तहरीक है, और साथ ही साथ कायगा मुखालिफ तहरीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप एग्ज़ाम को बार बार पूछ सकता है। चिपको तहरीक, अपीको तहरीक, नर्मदा तहरीक, मोनावादी तहरीक, साहिली इलाक़ों के ख़िलाफ़ तहरीक और कायगा मुखालिफ तहरीक। नेक्स्ट 2023 का इम्पोर्टेंट वन क्वेश्चन देखें। फसाद की शक्ल और सूरत को बयान कीजिए। जवाब देखें, जवाब यहाँ पे, फसाद में रास्ते में आने वाले हर चीज़ को तबाह किया जाता है, बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, उनका कोई खुसूसी मकसद नहीं होता, अफवाहों को सही माना जाता है, जज्बात को भड़काया जाता है, अमन और शांति के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, साथ ही साथ गैर तहज़ीबी सलूक किया जाता है, फसादात गैर महज़ब हैं। 2030 मोनावादी तहरीक का आगाज़ क्यों हुआ था? जानदारों की ज़िंदगी को बचाने के लिए, जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जानदारों की ज़िंदगी ख़तरे में, ख्वाहिशमंद लोगों ने बांध की तामीर के ख़िलाफ़ तहरीक की और साथ ही साथ जंगलात की तबाही। मार्च 2024 का क्वेश्चन देंगे। फसादात को किस तरह काबू पाया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फसादात होते हैं उनको काबू में किस तरह किया जाता है? इंसान की मौका शनासी की जाती है, पुलिस, हिफाजती दस्ते और क़ानून वगैरह से उनको काबू में लाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, अपीको तहरीक की वजाहत कीजिए। जो अपीको तहरीक है उसकी वजाहत कीजिए, जो जून 2024 का एक अहम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब देखें। कर्नाटक के शुमाल कैनरा ज़िला के सैलानी क़रिए के किसानों ने 1983 में अपीको तहरीक चलाई। कलेसा जंगल में किसानों ने दरख्तों से लिपट कर उसके खिलाफ एहतजाज किया। दरख्तों की खुफिया फरोशी को रोकने और आम लोगों में दर्जनों की खुफिया को रोकने और दरख्तों की अफजाइश की अहमियत के मुतल्लक़ बेदारी पैदा करने के लिए माहौलियात की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना इन लोगों का अहम मकसद था। अज़ीज़ तुलबा, ये रहा आज का आपका समाजियात से मुतल्लक़ बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, जो कि एग्ज़ाम में बार बार इसको पूछा जाता है। इसी तरह मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, आप जो भी TET, CET, PST, GPT, HST जो भी देने वाले हैं, आप सिर्फ एक नज़र इसको अगर सुन लें तो आपके इल्म में उम्मीद करता हूँ कि 1-2-4 पॉइंट अगर आपके जहन में बच भी जाएं तो आपको आने वाले इम्तिहानों में इंशाअल्लाह आसानी होगी। चलिए तुलबा, अज़ीज़ तुलबा, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे ग्रुप को सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोस को आपके अपने दोस्तों में, अपने हाई स्कूल के ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिए। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।